Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again. And having discussed A Letter to God and Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, now it is the time to discuss our next chapter of Class 10th English, that is Two Stories About Flying. Guys, in this lecture, we'll talk about the extract based questions, or you can say multiple choice questions of the chapter. But before we move on, we would request all of you to subscribe to our channel. Do visit our official website, that is www.brainylads.in. Do press the bell icon for regular and timely updates, and do not forget to share this video with your friends if you like it. Got the point, guys? चलिए let's move on to extract number 1. फटाफट इसको go through कर लेते हैं, देखते हैं extract number 1 में ऐसा है क्या. So guys, the first extract of the chapter is: the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो बताया गया है कि the young seagull was afraid to fly. As the title suggests, two stories about flying. उड़ने की दो स्टोरीज के बारे में बात की गई है guys. तो what was the problem with the seagull? Seagull was afraid to fly. ये है question guys, ये है extract. चलो on the basis of this extract questions को go through कर लेते हैं guys. So there are 4 questions in each extract. तो पहला question है name the chapter guys. A letter to God नहीं है, Nelson Mandela भी नहीं है, two stories about flying है, and from the diary of Anne Frank भी नहीं है. Who is the author of his first flight? Got it? जो first part है उसका author आपको बताना है guys. Quickly बताइए. रस्किन बॉन्ड है, जेम्स हैरियट है, जीएल फिंटस है, या लियाम हो फ्लहर्टी है. फटाफट guys quickly comment box में आके बताइए what is the right answer of this question. Quickly guys, रस्किन बॉन्ड नहीं है guys, तो ये it would be wrong. जेम्स हैरियट भी नहीं है, जीएल फिंटस भी नहीं है. Right answer is लियाम ओ फ्लहर्टी. Got it? This is the right answer, option number 3. Next question देखते हैं guys. Next question क्या है? What was a young seagull afraid of? जो young seagull थी वो किससे डर लगता था? उसको खाने से नो, सोने से नो, फ्लाइंग से डर लगता था guys. मरने की कोई बात ही नहीं की गई. So what is the right answer? 3. What does the word ledge means? Ledge क्या होती है guys? Ledge a bit of wood नहीं होती guys. Floating water भी नहीं होता. Ridge on a mountain, जो ridge होती है guys उसको क्या बोलते हैं? Ledge बोलते हैं. तो none of these would also be incorrect. तो ये आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. चल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं एक्सट्रैक्ट 2 पे. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. Brink is called corner. Flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. For the life of him he could not move. So guys, उसकी mental state बताई गई है कि mentally वो give up कर चुका था, that he was not able to fly. He was being encouraged by his mother and father. तो उन्हीं से related एक extract given है right in front of you. You can go through it. You can scan it guys, क्योंकि chapters बहुत सारे, time बहुत कम है, हमें सभी क्लास 10th के, क्लास 9th के, 11th 12th सबके चैप्टर्स को डिस्कस करना है, तो थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं. व्हाट डिड द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल एडवाइज हिम टू डू? टू डाइव इनटू द वाटर? नो. टू किल हिमसेल्फ? नो. टू टेक अ प्लंज इज द राइट आंसर गाइस. गॉट इट? तो क्या एडवाइस किया उन्होंने कि वो एक प्लंज ले ले. ये यहाँ पर गिवन है, टू टेक दैट प्लंज. जो जंप की उसको नीडेड थी वो जंप ले ले, लेकिन ही वॉज अफ्रेड. व्हाट इज अ सीगल? फटाफट जल्दी से बताइएगा सीगल क्या होता है. आपको ऑप्शंस गिवन है: एन एक्वेटिक फिश, पोलर बेयर, एन एक्वेटिक बर्ड, एन एक्वेटिक ईगल. फटाफट जल्दी से बताइएगा. फिश नहीं होती, बेयर नहीं होता, ईगल नहीं होती गाइस. एक एक्वेटिक बर्ड होती है जिसको क्या बोला जाता है? सीगल. गॉट द पॉइंट. चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सी और डी देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर सी है: व्हाट डज द वर्ड प्लंज मीन? प्लंज का मीनिंग आपको बताना है क्या होता है गाइस. अ स्टीप फॉल, एक फॉल होता है, राइज होता है, बैलेंस होता है, नन ऑफ दीज होता है. चारों में से फटाफट बताइए. चारों ऑप्शंस मैंने क्रॉस कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन रहे और आप बता सके कौन सा है. अ स्टीप फॉल एक
डीप जो चीज होती है जिसमें गिरना होता है उसको बोलते हैं, उठने को बोलते हैं, बैलेंस बनाने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड अ स्लीप फॉल। सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, नन ऑफ दीज है। प्लंज को क्या बोलते हैं गाइस? अ स्लीप फॉल। Which literary has which literary device has been used in whose wings were far shorter? देखिए W W W, जब कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं गाइस तो वो एलिट्रेशन बन जाता है, कॉन्सोनेंट्स। तो सिमिली नहीं होगा, लाइक और एज नहीं है, मेटाफर नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, तो राइट आंसर वुड बी एलिट्रेशन। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। एक बार बैक में चलते हैं और देखते हैं नीचे एक्सट्रैक्ट गिवन है। Extract 3. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him. His heart stood still. He could hear nothing, but only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards. Got it? तो बताया गया है कि कैसे उसने उड़ना सीखा, कैसे उसने जंप ली, उसी बेसिस पे एक एक्सट्रैक्ट है। सम पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन ऑन द प्रीवियस पेज और कुछ यहाँ पर है गाइस। चारों क्वेश्चंस देख लेते हैं। चारों क्वेश्चंस। What made the young seagull fly? Young seagull कैसे उड़ना सीखा? His love for parents? No. His hunger? Yes. His thirst for water? His strong physical appearance. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों आंसर जो है इरेलीवेंट है। उसकी भूख ने, उसकी स्टारवेशन ने उसको उड़ना सिखा दिया। देखिए जब आपको नीड होती है ना, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड अ ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। तो जब उसको भूख लग रही थी एंड ही न्यू दैट ही वुड डाई इफ रिमेन्ड हंग्री फॉर लॉन्ग, तो उसने अपनी भूख के लिए छलांग लगा दी थी गाइस। कहाँ पे? उसने एक प्लंज ले लिया था। प्लंज का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसने एक स्टीप फॉल ले लिया था, उसको लगा कि जो होगा देखा जाएगा। और जब भी आप रिस्क लेते हैं गाइस, द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज नॉट टू टेक द रिस्क। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ब्रेनी लैड्स पे। द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज नॉट टू टेक द रिस्क, ही टुक दैट रिस्क एंड ही सक्सीडेड टू। गॉट इट? व्हाट वाज द सीगल टारगेटिंग एट? सीगल किस पे टारगेट कर रही थी गाइस? फ्रॉग पे नहीं, डक पे नहीं, वाटर स्नेक पे नहीं, वो फिश पे टारगेट कर रही थी। लेट्स मूव ऑन, थर्ड और सी एंड डी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड सोर मीन? सोर का मतलब क्या होता है गाइस? फ्लाई डाउनवर्ड्स? नो। फ्लाई साइडवर्ड्स? नो। फ्लाई अपवर्ड्स? जब आप ऊपर की ओर उड़ते हैं तो वो सोर करने लगा था। जब आप आसमान छू लेते हैं तो इट मीन्स यूर सोरिंग, तो ऊपर की तरफ उड़ना इज कॉल्ड सोर। गॉट इट? व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम? देखिए टेरर जो है दैट इज नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग चीज आपको सीज कब करती है? जब पोएट उसको पर्सोनीफाई करता है। तो पोएट ने यहाँ पर पर्सोनीफाई किया हुआ है इसको, तो राइट डिवाइस वुड बी पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन नहीं होगा, सिमिली नहीं होगा, मेटाफर नहीं होगा। सिमिली क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि लाइक और एज का यूज नहीं किया गया। मेटाफर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। एलिट्रेशन में एक लेटर रिपीट होता है जो नहीं हो रहा, तो राइट आंसर वुड बी पर्सोनिफिकेशन। किसी भी तरीके से या तो एक सही या तीन गलत ढूंढ के यू कैन फाइंड 100% करेक्ट आंसर्स। गॉट इट? चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट्स की तरफ, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। बैक पेज पे जाना पड़ेगा, आई थिंक इट इज गिवन एट द एंड। एक्सट्रैक्ट फोर्थ है, पेरिस वाज अबाउट। सो दिस इज फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। फर्स्ट हमने कर ली है, सेकेंड पढ़ते हैं। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. ये प्लेन की बात की गई है गाइस, ये क्या था? प्लेन। तो अपना एक्सपीरियंस बताया गया कि द वेदर वाज नॉट गुड, द वेदर वाज क्लाउडी, बहुत सारे क्लाउड्स थे एंड इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू पास थ्रू। बट उसने रिस्क लिया, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करेगा, रिस्क लेगा।
एंड एज आई टोल्ड यू द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज नॉट टू टेक द रिस्क। तो इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पर है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नेम द चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। आपको फटाफट बताना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए गाइस, बताइए जल्दी से, बताइए गाइस हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहले का हमने पढ़ लिया था गाइस, फर्स्ट का आपको बताना है, रस्किन बॉन्ड है, नो, जेम्स हैरियट है, नो, लियाम ओफ्लैहर्टी नहीं है गाइस, ये फर्स्ट पार्ट का है, एंड फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है गाइस, ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। व्हाट वाज द पायलट रनिंग आउट ऑफ, रनिंग आउट ऑफ का मतलब गाइस, रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू फॉल शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू फॉल शॉर्ट ऑफ, किस चीज़ की कमी पड़ रही थी पायलट को, आपको ये बताना है गाइस, विल पावर की नो, मेंटल स्ट्रेंथ की नो, फ्यूल की कमी पड़ रही थी, नन ऑफ दीज वुड आल्सो बी इनकरेक्ट। व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दे लुक्ड लाइक आ गया गाइस, सिमिली आपका आंसर हो जाएगा, मेटाफर गलत, पर्सोनिफिकेशन गलत, एलिट्रेशन गलत, गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फिफ्थ देख लेते हैं गाइस क्या। There was no answer, the radio was dead too, I had no radio, no compass, and I could not see where I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. Where there is a will, there is a way. Where there is a risk, there is a success. जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ रिस्क है, वहाँ सक्सेस है। देखिए एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉब्लम, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट यू आर द ओनली वन हु कैन सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Got it? तो all of a sudden जो second plane था guys, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था, ये इस एक्सट्रैक्ट में गिवन है। उसने वेविंग भी की थी, उसने हेलो भी किया था। तो देखते हैं कि इसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस क्या। व्हाट हैपेंड टू द मेडे कॉल्स मेड बाय द पायलट। मेडे कॉल्स हमने कल भी डिस्कस किया था गाइस, मेडे कॉल्स होती हैं एमरजेंसी कॉल्स, got it? So the pilot was in emergency, he was unable to figure out his way, he was unable to find out his way। तो मेडे कॉल जब की गई थी तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, he was surprised to be helped। आगे ऑप्शंस आगे वाले पेजेस पे देख लेते हैं। he was assured that his plane would be given the fuel, the runaway was freed, he got no answers of the call। ये आपको बताना है गाइस, फटाफट जल्दी से बताइए। तो द राइट आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडे कॉल्स का, उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। गॉट इट गाइस, लेट्स मूव ऑन। हु वाज फ्लाइंग अनदर प्लेन, जो दूसरा प्लेन था वो कौन उड़ा रहा था, हिज कलीग नो, हिज वाइफ नो, हिज फादर नो, नन ऑफ दीज आएगा गाइस। ही हिमसेल्फ वाज अननोन, उसको खुद नहीं पता था कि वेयर डिड दैट सेकंड प्लेन कम फ्रॉम, कि जो सेकंड प्लेन था वो कहाँ से आया। गॉट इट। व्हाट डज द वर्ड ग्लैड मीन, ग्लैड का मतलब खुश होता है गाइस, हैप्पी होना होता है। मोनोटोनस बोरिंग होता है, डिसहार्टेंड जिसका दिल टूट जाए, बी वाइल्डेड जो कंफ्यूज हो। सो राइट आंसर वुड बी गे, गे का मतलब गाइस क्या होता है, हैप्पी। गॉट इट। हाउ डिड द अनदर पायलट ग्रीट हिम, उसने कैसे ग्रीट किया उसको, उसने अपना हाथ उठाया, यस, लिफ्टिंग हिज हैंड, उसने वेव भी किया। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक है, तो नाइदर 1 and no 2 ये दोनों गलत हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट 6 पे। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. कितने टाइम का फ्यूल बचा था गाइस, 5 से 10 मिनट का। I was starting to feel frightened, मुझे फिर से डर लग रहा था, but then he started to go down and I followed through the storm। वो नीचे जाने लगा और मैंने स्टॉर्म से फॉलो किया, स्टॉर्म में से फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds, तभी मैं किससे बाहर आ गया, क्लाउड से, and saw 2 long straight lines of lights in front of me। It was a runway। runway क्या होता है guys, वो जगह होती है जिसपे प्लेन जो है वो लैंड करता है। and airport I was safe। got it। तो क्वेश्चंस देखते हैं। What was the pilot's chief worry when he was lost in the dark cloud? He wanted to meet his wife, he wanted to see his daughter, he was running out of fuel, he was not finding the runway। फटाफट जल्दी से बताइए guys, what is the right option of this question? तो फटाफट बताइए गाइस, 4 ऑप्शंस आपके सामने। ही वांटेड टू मीट हिज वाइफ, नो, ही वांटेड टू सी हिज डॉटर। वो चीफ वरी नहीं थी, यस ही वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज वाइफ, वो करना चाहता था, लेकिन टेंशन क्या थी, टेंशन वाज दैट ही वाज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ भी क्या हो जाएगा गाइस, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं।
What do you think? Who do you think helped the pilot getting through? किसने मदद की होगी? His hard work? No. His patience? No. Supreme power? God. Proverb भी आपने पढ़ी होगी. God helps those who help themselves. बहुत खूबसूरत प्रोवर्ब है. तो गॉड ने उसकी हेल्प की. ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा. व्हाट हैपन टू द सेकेंड एरोप्लेन? वो कहाँ हो गया गाइस? वो गायब हो गया. उसके बाद वो कभी नहीं मिला. एयरपोर्ट पे भी नहीं मिला, रनवे पे भी नहीं मिला. नन ऑफ दीज वुड आल्सो बी करेक्ट. आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड. ये बताना गाइस, एफ एफ का यूज किया गया. कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है. जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी कॉन्सोनेंट्स की, सिमिली नहीं होगा, मेटाफर नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा. राइट आंसर वुड बी एलिट्रेशन. गॉट द पॉइंट गाइस. आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है नहीं. यस, एक्सट्रैक्ट 7th भी है. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane. Up there in the storm, no other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Radar क्या होता है गाइस? इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से आप प्लेन को देख सकते हैं, उसकी लोकेशन को, उसके जो उसका ऑल्टीट्यूड होता है उसको टेस्ट कर सकते हैं. व्हाट इज रडार? रडार क्या होता है गाइस? फटाफट जल्दी से बताइए. ए बी सी डी, चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है. क्विकली गाइस, क्विकली फाइंड आउट व्हाट इज रडार. क्विकली गाइस बताइए फटाफट. रडार क्या होता है गाइस? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लोकेट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. नहीं. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लोकेट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. यस. क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं होता गाइस, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं. डिस्टेंट. डिस्टेंट के लिए एक और इसका जो सिनोनिम है दैट इज यॉन्डर. यॉन्डर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रडार. नन ऑफ दीज नहीं है. Why did the pilot thank the women in the control center for accepting his proposal? No, there was nothing like that. For rejecting his proposal? No, she was not proposed. She was neither proposed nor offered. For sending the other pilot to save his life? Yes. The man was mistaken. उसको लगा कि जो कंट्रोल सेंटर में विमेन बैठी है, शी हैज सेंट समवन टू सेव हिज लाइफ, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. लेकिन उसको लगा कि ऐसा हुआ, इसलिए उसने उसका थैंक यू करने के लिए वो कंट्रोल सेंटर में गए, उसने उसका थैंक यू की. लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं. हाउ डिड द वुमेन एस्टॉनिश द पायलट? वुमेन ने पायलट को एस्टॉनिश, शॉक कैसे कर दिया? स्टेटिंग दैट हिज वाज द ओनली प्लेन फ्लाइंग. यस. स्टेटिंग दैट देयर वर टू मोर प्लेन फ्लाइंग. नो. स्टेटिंग दैट शी हैड सेंट अनदर पायलट टू हेल्प हिम. नो. उसने कहा कि देयर वाज नो सेकंड प्लेन. सेकंड प्लेन कोई था ही नहीं. देयर वाज ओनली वन प्लेन फ्लाइंग एंड दैट वाज योर्स. तो मैन वाज शॉक्ड क्योंकि उसने सेकंड प्लेन को अपनी आंखों से देखा था. उसने अपना जो दूसरा पायलट था उसने अपना लिफ्ट भी किया था, हैंड उसको वेव भी किया था. दिस थिंग शॉक्ड हिम. व्हाट मेड द वुमेन लाफ? उस वुमेन क्यों हंस रही थी? इंक्वायरी ऑफ हर मैरिज, क्या उससे शादी की बात की गई थी? नहीं. प्रपोजल गिवन बाय द पायलट? नो, ऐसा कुछ नहीं था. इंक्वायरी ऑफ हर सैलरी, ऐसा कुछ नहीं था. इंक्वायरी ऑफ द अदर पायलट, जब इस पायलट ने दूसरे पायलट के बारे में पूछा, हु एक्चुअली नॉट एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो डिड नॉट एग्जिस्ट, तो दैट मेड दैट वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लाफ. गॉट द पॉइंट गाइस. एक बार और देख लेते हैं, कोई एक्सट्रैक्ट तो नहीं है इसके बचे हुए, कोई एक्सट्रैक्ट हो? आई डोंट थिंक सो गाइस. तो ये ही एक्सट्रैक्ट्स हैं गाइस. वी हैव गॉन थ्रू 7 एक्सट्रैक्ट, 7 एक्सट्रैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do share it with your friends, do subscribe to our channel and do press the bell icon so that you can get timely updates. Thank you very much for being with us. Have a nice day.